We have done all these parts. Right now we are here. This is today's topic. Straight line chapter has been divided into several parts. Let's start. The lecture is in English and Hindi language. If you face any problem in understanding recap or understanding this lecture, then you must see previous lectures and then come back. Recap of previous concepts. Slope tan theta y2 minus y1 by x2 minus x1 when 2 points are given. If a straight line is given, then we know equation of x-axis is y0, parallel to x-axis is y equal to b, y-axis is x equal to 0, and parallel to y-axis is x equal to a plus. I gave you some extra concepts. Point slope form means a point is given and a slope is given. So this is point slope form. Just put the value here. If a line passes through origin, then x1 is 0 and y1 is 0. So you get y equal to mx. 2.5 means that if 2 points are given, then this is the equation of a straight line. Since 2 points are given, we can find slope like this, and I can put the value of slope here. Determinant form is another version of 2-point forms. Just you can remember this formula. Slope intercept form. Here the intercept is y-intercept. We know that there are two types of intercept, x-intercept and y-intercept, which we are going to study in detail today. So, if y-intercept is given and slope is given, then this is my answer. And we have done a detailed discussion on this also. Special case, if x-intercept is given and slope is given, then this is your answer. So what's new today? Intercept form, extremely important, and we have lots of question. What is x-intercept and y-intercept? Let's recap. Suppose this straight line cuts x-axis at A, capital A, and this cuts y-axis at capital B. Then this OA is called x-intercept with proper sign, and OB is called y-intercept with proper sign. Like here, it cuts on positive x-axis, so OA is positive. If in some other case, uh, the line cuts x-axis at A in the negative x-axis, you can see that, then I will say OA is negative. So proper sign is essential. I will give you short notes. So if this length is A, I can say A, capital A is A comma 0. If this length is B, I can say capital B is 0 comma B. Then how this question, this formula has come? How this formula has come? It has come in a very simple way by slope concept. Very easy way. Let's derive this formula. Can we say that slope of this PA, right? All these three are collinear. A, PB are collinear. So slope of PA should be equal to slope of BA. That's it. So what is slope of PA? Y minus 0 by x minus A. And what is slope of BA? B minus 0 by 0 minus A. So let's start. Slope of PA equal to slope of BA, right? What is slope of PA? Tell me. Y minus 0 by x minus A. What is slope of BA? B minus 0 by 0 minus A. That's right. So far this is my answer. But our actual form is this. So we will simplify and try to get this form. So let's simplify. Easy to understand. This goes this side, this goes this side, and little bit simplification is done. Now see, we need 1 on this side. This is extremely important to know. We need 1 on this side. So to get 1 on this side, I need 1 on this side.
So to get 1 on this side I need to divide both side by, मुझे दोनों साइड को डिवाइड करना होगा इसी क्वांटिटी से, करेक्ट, तभी तो मुझे ये कट के 1 मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा हिंट है, दिस इज द ग्रेट हिंट। सो लेट्स डिवाइड by AB, by AB, AY by AB, therefore cancel होकर 1, x by A, y by B, proved. So this is my answer derived. So y is clear. So if I give you x-intercept and y-intercept with proper sign, like if I say x-intercept is 2, y-intercept is -5, the line will look like this. X-intercept is positive 2, y-intercept is negative. This will be my equation of the line. So equation will be in this form, x by a plus y by b. So x by a is 2, y by -5 equal to 1 using this formula. I think it's pretty clear. So whole lecture is dedicated on this. I will tell you lots of extra thing, lots of shortcuts, lots of questions, classwork, homework, example, miscellaneous, previous year's question, NCERT exemplar, plus etc. some other questions from other sources, all combined together in this lecture. If this lecture is becomes lengthy, I may divide into 2 parts also. Let's go to the another concept. Intercept A may be positive or negative. I have explained you very clearly. Let's see an example here. This is x-intercept, correct? It cuts x-axis, and OB is y-intercept. As you can see very clearly, OA lies on the negative side, so will be negative, and OB lies on the positive side of y-axis, so it will be positive. Okay. Similarly, here you can say OA is negative, OB lies on the negative side, so y-intercept is also negative, x-intercept negative, and y-intercept negative. So intercept can be positive, negative, proper sign is important. If I use the word length of the intercept, if I use the word length of any intercept, then length is of the intercept is always positive. Length mane only magnitude, so always positive. So here if the intercept OA, I am using the term intercept OA is -2, then length of the intercept will be only 2. Anyway, that was extra. So conclude करते हैं, -a, -0, 0, b. In this case, so what will be equation of this straight line, this orange straight line? It will be, as our formula says, x by -a, right? X by x-intercept -a, y by y-intercept is equal to 1. That's right. So equation of this line will be so and so. Similarly, in this case also, x-intercept is negative, y-intercept is negative. We can find coordinate of x, find coordinate of b, and then write this formula: x by x-intercept, y by y-intercept equal to 1, etc. So let's do it quickly. -a comma 0, b 0 comma -b, because this is -b. So equation of the line will be x by -a, y by y-intercept equals to 1, etc. So simple. So important thing is intercepts can be positive as well as negative. Next, warning. Okay, let's ignore this part. Warning is that intercept is not always possible. Why it is not always possible? Let's see this case 1. In this case 1, a line is parallel to x-axis. So we have y-intercept. Y-intercept means if B is a point where this line cuts x-axis, I mean y-axis, if B is a point where the line cuts y-axis, अगर B ऐसा point है जो line cut कर रहा है y-axis में, then we know that OB is called y-intercept. OB को y-intercept कहते हैं. तो if a straight line is parallel to x-axis, अगर एक straight line parallel है x-axis के, तो y-intercept तो मिल गया, जो भी length हो.
लेकिन x, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो है, ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि वो पैरेलल ही चल रहा है, राइट? It will never cut x axis. Since it will never cut x axis, I will not get x intercept. That's right, I will not get x intercept. So I will say that x intercept is infinity because these are two parallel lines. So parallel lines का concept ये है कि that they intersect at infinity. Infinity में कट करते हैं, तो I am not getting x intercept. तो since I am not getting x intercept मतलब मुझे a तो मिला नहीं, ये तो infinity हो गया. So I am not getting a proper intercept form. So intercept form is not possible when a straight line is parallel to x-axis. ये है summary. Intercept is not possible when a straight line is parallel to y-axis. ये है summary. Same thing. जब line parallel to y-axis होगा तो you are getting x-intercept, लेकिन आपको ये y-intercept नहीं मिल रहा है. You are not getting y-intercept क्योंकि y-intercept यहाँ पर पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो दे विल नॉट मीट, या हम कहेंगे दे विल मीट एट इंफिनिटी. तो वाई इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी, तो इसको शॉर्ट में कहेंगे नहीं मिला वाई इंटरसेप्ट, नो वाई इंटरसेप्ट. तो अगर वाई इंटरसेप्ट की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो आई एम नॉट गेटिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सो इन इंटरसेप्ट फॉर्म, प्रॉपर इंटरसेप्ट फॉर्म, सो आई कैनॉट यूज इंटरसेप्ट फॉर्म. आप दूसरा कुछ यूज कीजिए. अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या कहते हो आप? अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस को सिंपली x इक्वल टू कांस्टेंट कहते हो गया. वो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा. आपने अभी अभी कहा कि ये y इंटरसेप्ट क्या है? जीरो, आई मीन इंफिनिटी. y इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी, राइट? क्योंकि इंफिनिटी में कट करेगा, तो b के जगह आप इंफिनिटी लिख लो. तो y बाई इंफिनिटी क्या होगा? जीरो. Therefore x इक्वल टू a, x इक्वल टू कांस्टेंट आ गया. ये देखो, x इक्वल टू कांस्टेंट इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो इतना करने की क्या जरूरत है? वी कैन डायरेक्टली राइट x इक्वल टू कांस्टेंट. So basically intercept form is not possible. I cannot write intercept form when a line is parallel to x-axis, or when a line is parallel to y-axis, or when it passes through origin. जब origin से pass करेगा तो there is no OA, OA भी नहीं है, OB भी नहीं, कुछ नहीं है. यानी A is equal to 0 and B, y intercept B is also 0. तो x by 0, y by 0 equal to 1, तो ये तो गड़बड़ हो गया. So in these three cases, intercept form is not possible. So that was the warning. I will give you some other concept here. Suppose this line is my general equation of a straight line. Matlab, if ax plus by plus c is equal to 0 is my line, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा. इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के टू मेथड्स है. मेथड 1 by process which I will tell you a bit later, और मेथड 2 by शॉर्टकट. तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट वाला अप्रोच अभी बता देता हूं. अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, यानी ये चाहिए इस लाइन का, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c0, ठीक है? तो ये a b कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये a अलग है, ये अलग है, दे आर डिफरेंट एक्चुअली. तो x इंटरसेप्ट अगर चाहिए, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया है, तो पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा वो होगा x इंटरसेप्ट. दैट इज द शॉर्टकट. और y इंटरसेप्ट अगर आपको चाहिए तो पुट x इक्वल टू 0. y इंटरसेप्ट चाहिए तो पुट क्या करो? x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो y का जो भी वैल्यू मिल जाएगा वही आपका वैल्यू होगा y इंटरसेप्ट का. तो यही मैं रिवाइज करवा देता हूँ. फॉर x इंटरसेप्ट put y equal to 0 and you get value of x. ये x intercept हो गया. For x put y 0. For x intercept put y 0. For y intercept put x equal to 0. ये लो भाई 0 पुट कर दिया हमने और y का वैल्यू मिल गया. दैट इज माय y इंटरसेप्ट. ये शॉर्टकट बहुत ही काम में आएगा आपके फ्यूचर में. तो ये तो हो गया हमारा मेथड 2, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. प्रॉपर मेथड और क्या है बताते हैं. तो यहां मैं रिवाइज करा दूं. x इंटरसेप्ट टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, y इंटरसेप्ट का वैल्यू इतना है, ये देखो मैच कर गया.
दिस एंड दिस आर मैचिंग। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रॉ किया था मैंने। ये देखो x इंटरसेप्ट इज c बाई ए, x इंटरसेप्ट इज c बाई ए, y इंटरसेप्ट क्या होगा, टेंस टू इंफिनिटी, बिकॉज एक्चुअली वी विल से नो y इंटरसेप्ट पॉसिबल, लूजली स्पीकिंग टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ तो कुछ भी नहीं, दोनों ही जीरो, क्योंकि हम इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट OA को, OA का लेंथ भी जीरो, OB का लेंथ भी जीरो, कब, इफ इक्वेशन, if a line is passing through origin. Okay. Example 1. So read this. Line cuts off equal intercept from the axis. Okay. So if we have a line, then we know that OA is x intercept, OB is y intercept. According to the question, OA should be equal to OB. Simple to understand. So since OA is equal to OB, matlab according to the question A is equal to B, so I can write both A, x by A plus y by A equal to 1. I can do so. Y by A equal to 1. So intercepts are equal now. So my equation will be x plus y equal to A. And if this line passes through any point 1 comma minus 2, that means x is equal to 1 and y equal to minus 2. That will satisfy the equation. So I will put x equal to 1 and y equal to x equal to 1 and y equal to minus 2. And that will give me value of A. उससे मुझे A मिल जाएगा. So passes through this point. So A equals to minus 1. Simple. So I will put this A equals to minus 1 here and I will get my answer. X plus Y minus 1, that is my answer. So let me show you what is the line. X plus Y equal to minus 1 is a line given to you. ऐसा line दिया हुआ है आप draw करना चाहते हो. You want to draw this line. तो just what you have to do कि उसको आप intercept form में convert कर दीजिए. Draw करने का सबसे easy तरीका, easy method to draw a line is कि आप उसे intercept form में convert कर दीजिए. Intercept form में convert करने के लिए right side should be 1. तो यहाँ राइट साइड को 1 करने के लिए हम इस -1 से डिवाइड कर देंगे. -1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो x बाई -1 प्लस y बाई -1 -1 बाई -1, तो ये कट के 1 आ गया. सो दिस इज माय इक्वेशन. तो x बाई -1 y बाई -1 इक्वल टू 1 किस टाइप का इक्वेशन होगा, ये x इंटरसेप्ट है. तो x इंटरसेप्ट मतलब पहले लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, पहले इसको ड्रॉ करेंगे. ओके. x इंटरसेप्ट एक नेगेटिव है, सो दिस पॉइंट -1, 0 will lie on the negative x axis. y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट का ये जो पॉइंट b है वो भी नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा. अब हम अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा लाइन है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन कहां से पास कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन 1, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट से भी पास कर रहा है. ये है पूरा एक्चुअल सिनेरियो. सो इन शॉर्ट लाइन है ये, और दीज आर द थिंग. और 1, -2 ये है हमारा सिचुएशन. तो ये आपको डिटेल में मैंने सिनेरियो भी दिखा दिया. रिडक्शन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब आपको एक जनरल इक्वेशन अगर गिवन है लाइक दिस, एक जनरल इक्वेशन गिवन है, तो उसे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एंड दैट इज वेरी सिंपल. ये 1 इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल से दिस 1 इज इंपॉर्टेंट. तो राइट साइड में मुझे 1 चाहिए और बाकी मुझे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 है, मुझे 1 चाहिए, तो c को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -c. ठीक है. फिर अब तो मुझे यहाँ 1 चाहिए,
अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तभी तो कैंसिल होकर 1 होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ साइड बाय -c और मुझे यहाँ कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा और फिर बहुत इजीली इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया। तो आई विल डिवाइड बोथ साइड बाय -c, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको अच्छे से नोट कर लो। ये है की स्टेप की 1 चाहिए। ठीक है भाई, अभी भी एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं आया है, ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और नीचे कांस्टेंट। तो यहाँ a डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो a को आप यहाँ नीचे शिफ्ट कर दीजिए तो वो हो जाएगा -c/a, समथिंग लाइक दिस, x बाई -c/a। और y अगर नीचे चला जाएगा तो इट विल बिकम समथिंग लाइक -c/b, इजी है। सो ये हो गया ना। अगर कंपेयर करो इन दोनों को, कंपेयर करते हैं तो a यानी x इंटरसेप्ट इज -c/a, जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। a यानी x इंटरसेप्ट इज -c/a। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है तो वहां से आप डायरेक्टली x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, -c/a। -c क्या है, कांस्टेंट टर्म, right? C is the constant term, A is called coefficient of x, B is called coefficient of y, and C is constant term. So minus constant term by A मतलब coefficient of x, that's the answer. So similarly, y intercept B will be minus C by B. तो याद करना भी बहुत इजी है इसे, कि अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x इंटरसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x, x, और अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y इंटरसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ y। सो चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम स्लोप चाहिए मुझे अगर, तो -a/b फॉर्मूला है, रिवीजन कर लेते हैं स्लोप का। तो a हो गया 2 और b हो गया -5, तो आंसर +2/5। यहां से आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो आंसर है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट, x कोफिशिएंट ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, 3, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो ये आंसर हो गया। और अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ y इंटरसेप्ट y, तो b। तो क्वेश्चन गायब हो गया, 2x माइनस 5y समथिंग था कुछ, आई होप दिस वन। तो कितना हो गया, -c is 3/b, b is -5, b is -5, तो +3/5 is my y इंटरसेप्ट। ये प्रैक्टिकल डेमो हो गया। नाउ तो मैंने आपको अगर एक इक्वेशन दिया है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो आप इस तरह से पूरा इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करके कह सकते हो कि ये होगा x इंटरसेप्ट और यहाँ पर जो भी पार्ट हो वो y इंटरसेप्ट। दूसरा मेथड हुआ ये। और थर्ड मेथड बहुत ही वंडरफुल मेथड है, जो भी मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट फिर से बताता हूँ। उस वंडरफुल मेथड से डिराइव करते हैं कि x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट ये है। वंडरफुल मेथड क्या है, अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या पुट करो, y0। x इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करो, y0। क्यों y0, क्योंकि ये देखो ये x इंटरसेप्ट है ओए और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए y0 पुट करते हैं। और अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो y इंटरसेप्ट में ये कोऑर्डिनेट को देखो क्या 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हम x0 पुट करते हैं कब, जब y इंटरसेप्ट चाहिए। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो क्या हम x इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो क्या पुट करेंगे, y0। तो देखते हैं क्या मुझे ये मिलेगा, y0 पुट करने के बाद x का जो भी वैल्यू आएगा वो होना चाहिए क्या, x इंटरसेप्ट। तो लेट्स सी क्या इतना आता है, देखते हैं। पुट y0, x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, -c/a, ये मैच कर गया। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेप्ट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट पुट x0, y पुट x0, मैच कर गया। तो ये बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड। सो देयर आर 3 मेथड्स,
आप डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या इस फॉर्मूला को यूज करो, या इस तरह से y0 x0 पुट कर लो, ये बेस्ट मेथड है। एग्जाम्पल 2, रीड कर लीजिए। रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने बेसिक से मुझे स्टार्ट करना होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इंटरसेप्ट क्या है बताइए, मतलब बिना शॉर्टकट के। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, राइट साइड में 1 का होना बहुत जरूरी है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख दें, और राइट साइड में 1 के लिए मुझे 12 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड को। तो 3x बाई 12, 2y बाई 12, 12 बाई 12 1। तो फाइनली आंसर आ गया x बाई 4, y बाई 6 इक्वल टू 1। तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, x इंटरसेप्ट कितना है 4, और y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 6, बिकॉज दिस इज अवर इक्वेशन। यहां से कंपेयर करके हम कह सकते हैं x इंटरसेप्ट इज 4 एंड y इंटरसेप्ट इज 6। तो ये है हमारा थिंग, ये समझ गए होगे। लेकिन चलो शॉर्टकट से भी करके देख लेते हैं। अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो पुट क्या 0, x के लिए इंटरसेप्ट के लिए पुट क्या 0, y 0। तो y 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y, y 0 है इक्वल टू 12 लिख देते हैं, therefore x इक्वल टू 12 3 4। ये देखो मिल गया। और y इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या 0 पुट करेंगे, x 0। y इंटरसेप्ट के लिए क्या 0, x 0। चलो फिर से पुट करते हैं x 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 12, therefore y इक्वल टू 6। ये देखिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, ट्राई योरसेल्फ। राइट साइड में 1 चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 4x बाई 6 प्लस साइन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, चलो प्लस अभी नहीं, 3y बाई 6 इक्वल टू 1। तो उसके बाद 4 नीचे आ जाएगा, मैं शॉर्टकट फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 6 बाई 4 प्लस साइन, क्यों प्लस साइन, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस था। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था बीच में प्लस था उसी फॉर्म में लाना होगा। प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा, y माइनस 2 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 बाई 2। सो फाइनली आई हैव x बाय 3 बाई 2, बीच में प्लस साइन कंपलसरी है, y बाय माइनस 2 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू, आई मीन x इंटरसेप्ट इज 3 बाई 2, और y इंटरसेप्ट इज माइनस 2। ये मिल गया आंसर। तो जस्ट 6 से डिवाइड करने से ही काम चल गया। तो ये देखो भाई वही हुआ है, 6 से डिवाइड किया हमने और आंसर आ गया जैसे भी मैंने बताया था। शॉर्टकट से भी वही, x इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या पुट करो, पुट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब ये 0 हो गया, x का वैल्यू 6 बाई 4 यानी 3 बाई 2। फास्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो पुट क्या 0, पुट x 0। ये x 0 हो गया, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 6, देयरफॉर y का वैल्यू माइनस 2। ये देखिए आ गया, वो भी बहुत ही इजी तरीका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, 3y। ये है थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये हमारा ओरिजिन है, x एक्सिस एंड y एक्सिस है। y इक्वल टू माइनस कांस्टेंट का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, x एक्सिस, और ये है माइनस के, मतलब दिस कोऑर्डिनेट यू कैन से 0 माइनस के, ये सब माइनस के है। तो मैं जानता हूं इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन उसका y इंटरसेप्ट तो होगा कितना, माइनस के, लेकिन x इंटरसेप्ट क्या होगा, नहीं होगा, बेसिकली इट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर भी y का वैल्यू कितना है,
y का वैल्यू है -2/3, तो ये माइनस के का काम कर रहा है, तो हमारा y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो गया, -2/3 मिल गया y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब देयर इज नो x इंटरसेप्ट, तो ये भी हो गया सॉल्व। तो उसको सजा के लिख दे। और एक तरीका से बता दे, अगर इसको आप रिड्यूस करना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ तो x नहीं है, अगर x नहीं है तो 0x तो लिख सकते हैं, और एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैं दिखा देता हूँ वो मेथड भी। तो 0x, ठीक, डिवाइड कर देंगे जैसा सिखाया आपको, इन्फिनिटी हो गया। ट्रूली स्पीकिंग यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिखना चाहिए, एनीवे इनफाइनाइट हो गया ये। तो अब देख लीजिए आप, नो एक्स इंटरसेप्ट, यस, और वाई इंटरसेप्ट कितना, -2/3। तो ये क्या प्रॉपर फॉर्म, x नहीं है तो 0x लिख लीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ओरिजिन x y एक्सिस और बिलो x एक्सिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, जिसका y इंटरसेप्ट -2/3 है और x इंटरसेप्ट नहीं है, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी है। ओके, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सो एक्स्ट्रा कंसेप्ट में मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स दूंगा, और क्या क्या पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए इज पॉइंट जहां पर लाइन कट करता है x एक्सिस को, b इज अ पॉइंट जहां पर लाइन कट करता है y एक्सिस को, o इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, ob इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, a का कोऑर्डिनेट a,0, b का कोऑर्डिनेट 0,b। ab को क्या कहते हैं, देयर इज अ नेम, ab को कहते हैं पोर्शन ऑफ द या लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये फाइंड करेंगे। दिस ए बी इज इंपॉर्टेंट, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करेंगे जिसमें मॉड होगा, क्यों मॉड होगा वो सब डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इक्वेशन तो ये होगा, आप जानते ही हो, हम ट्राइंगल ओ ए बी से रिलेटेड बात करेंगे। ट्राइंगल ओ ए बी से रिलेटेड क्या बात करेंगे भाई, लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, यानी ए बी, ये ए बी जो है, ए बी जो है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये लेंथ बहुत ही इजी है, डिस्टेंस फार्मूला से ये लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स नोन है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी विल बी रूट ओवर ऑफ so and so square, so and so square, root a square plus b square, ये देखिए आ गया। So you can remember this. Second is कि we know these 2 points, तो mid point क्या होगा, बहुत सिंपल है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ये फॉर्मूला है। तो x1 plus x2 by 2 हम यूज करेंगे और y1 plus y2 by 2 यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा, 0 plus a by 2, 0 plus a by 2, 0 plus b by 2, a by 2, b by 2 मिल गया। सो मिड पॉइंट b plus 0/2 मिल गया आंसर। चलो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हम बताने वाले हैं। शॉर्टकट क्या है, अगर मिड पॉइंट गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, यहां तो a गिवन था और b गिवन था, और आपने मिड पॉइंट को फाइंड किया, और वो आया a/2, b/2, मिड पॉइंट को क्या किया, फाइंड किया। शॉर्टकट में मैं क्या कर रहा हूं, अगर मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, जैसे मिड पॉइंट अगर p, q गिवन है, तो क्वेश्चन है कि a और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर ये a है तो इसका आधा a/2 आ गया, हाफ आ गया है ये, यानी यहां जो भी होगा उसका ये डबल होगा।
a/2 का डबल क्या होता है a। तो ये मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है। तो हमारा शॉर्टकट ये होगा कि अगर ये p है, p x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, तो x इंटरसेप्ट x कोऑर्डिनेट है तो x इंटरसेप्ट डबल हो जाएगा 2p, 0। जैसे x कोऑर्डिनेट a/2 है तो इसका डबल क्या होता है a, ये देखिए a है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट अगर q है, आई मीन सॉरी मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर q है, तो y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट 0, q का डबल, q का डबल 2q हो जाएगा। सो पी क्यू है तो ये 2p और 2q हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मिड पॉइंट अगर b/2 है तो ये b/2 का डबल क्या होता है b, ये देखिए b। इस तरह से आप समझ सकते हो। सो क्या हुआ, मिड पॉइंट p, q 0 एंड 0, 2 डबल डबल हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट गिवन है तो इंटरसेप्ट्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डबल। ये शॉर्टकट आपको काम में आने वाला है बहुत ज्यादा। ये हम आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जेईई मेन के भी क्वेश्चन में आने वाला है ये। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ बेस कितना है a, ऑल्टीट्यूड कितना है b, तो हाफ a इंटू b हम कह सकते हैं। तो वाई देर इज अ मॉड साइन क्यों है, तो चलो डिस्कस करते हैं मॉड साइन क्यों है। तो पहले ये हो गया a, ये हो गया b। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया विल बी हाफ ए बी। ये तो इस ट्राइंगल के लिए। नाउ आई विल ड्रॉ अनदर लाइन लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पर x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, बट x इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो एरिया का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे इस केस में, 0। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ इंटू माइनस ए इंटू बी, राइट। लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है, एरिया तो नेगेटिव नहीं होता है, राइट। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एरिया वाला टॉपिक जब मैंने आपको करवाया था, किस में करवाया था, स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में देखना है आपको। स्ट्रेट लाइन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रेट लाइन 1 जिसमें बहुत सारा इंट्रोडक्टरी नॉलेज मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन 2 जिसमें आपको ये 24 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में एरिया है, वहां देख भी सकते हो कि मॉड साइन हमने क्यों दिया है। बेसिकली एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कोई ऐसा क्वांटिटी हो जो कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐसे एक मॉड साइन दे देते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। दैट इज द यूज ऑफ मॉड साइन। सो मॉड साइन है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आपका किसी भी तरह का सिचुएशन हो, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो या अननोन हो, आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू पता होना चाहिए। सिर्फ वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आप हाफ मॉड ए बी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता है, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी होगा हाफ मॉड ए बी। हाफ मॉड ए बी याद रखना है। ओके, अब ये ओ ए बी एक ट्राइंगल है तो इसका सेंट्रॉइड भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा, और ये सारे बातें हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हैं। तो चलो इस ट्राइंगल के बारे में बता दें, क्या है सेंट्रॉइड एटसेट्रा। सेंट्रॉइड, तो अगर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये 3 कोऑर्डिनेट, आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो जानते ही हो स्टूडेंट्स, बाई 3। तो x1 हो गया 0, x2 हो गया a, और x3 हो गया 0/3, a/3 आ गया। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करने से ये भी मिल जाएगा। तो ये है सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट a/3, b/3 ऑफ सच ट्राइंगल। एकदम सिंपल है।
सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, y3/3, और इसके बाद जस्ट वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यूज आपके सामने है, जस्ट पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये डिराइव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, बहुत ही सिंपल था, और रिवीजन भी हो गया हमारा सेंट्रॉइड का। ठीक है, अब सरकम सेंटर। सरकम सेंटर तो आप जानते हो, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल में जहां से all the all the vertices OA equals to OB equals to OC। बाकी डिटेल्स आपको स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और वहां मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, डायरेक्टली मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये होता है सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज तो आप जानते हो 0 + a/2 b + 0/2, अभी अभी हमने देखा, तो यही हो जाएगा सरकम सेंटर, क्योंकि ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्यों मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, चलो फिर से एक बार बता दें। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है, ओ एम विल बी इक्वल टू एम ए is equal to mb, OM will be equal to ma is equal to mb। ये प्रॉपर्टी होता है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो m एक ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस है, राइट, ये तीनों वैल्यूज सेम है, OM इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू ma, तीनों वैल्यू इक्वल है। ऐसे ही पॉइंट को तो हम सरकम सेंटर कहते हैं, ऐसा पॉइंट को ही सरकम सेंटर कहते हैं जिसका डिस्टेंस कहां से इक्वल हो, तीनों वर्टिसेस से सेम आए। बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा उस लेक्चर में, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो देख लीजिएगा, एकदम डिटेल में वहां गिवन है डेडिकेटेड लेक्चर्स। तो सरकम सेंटर भी हो गया, सेंट्रॉइड भी हो गया। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, सब डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। और राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टकट क्या था सरकम ऑर्थो सेंटर का, राइट एंगल ट्राइंगल में था कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है BAC या कुछ भी, तो जो राइट एंगल्ड पॉइंट होता है, राइट एंगल्ड पॉइंट जैसे A राइट एंगल्ड पॉइंट है यहाँ पर, तो वही ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो इन दिस केस राइट एंगल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो इन दिस केस ओरिजिन हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है ये। अब रहा इन सेंटर, तो इन सेंटर का तो एक बड़ा सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, किसमें, स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में देखना है आपको, अगर नहीं आता है तो वो बड़ा सा सेंटर में फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फिर से मैं बता दूंगा और कैसे हुआ। तो फर्स्ट देखते हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ये सारा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लूं पहले। एक ट्राइंगल एबीसी में आई हमारा इन सेंटर है, कैपिटल ए वर्टिसेस जो है उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए कहते हैं, यानी बीसी इज स्मॉल ए। और BC का लेंथ आपको कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा, बिकॉज B और C का कोऑर्डिनेट नोन है, तो आप स्मॉल ए फाइंड कर सकते हो। स्मॉल ए किसको कहते हैं, कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड को, तो स्मॉल बी किसे कहेंगे, कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड को, और बी होता है AC। AC कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। स्मॉल सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कहेंगे, मतलब वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी कहेंगे, एंड सो ऑन। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले आपको ए का लेंथ फाइंड करना है, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, किसका डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस। B का लेंथ फाइंड करना है, AC का डिस्टेंस। C का लेंथ फाइंड करना है, AB का डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंस मिल गया, आपके पास इतने सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला है वो ये है, 2 + CX3/A+B+C। सिमिलरली y1 + by2 + cy3/A+B+C, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। और यहां पर आप पुट कर दीजिए प्रॉपर वैल्यूज। तो प्रॉपर वैल्यूज क्या है, प्रॉपर वैल्यूज इस ट्राइंगल के लिए A का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, और ये जो थर्ड लेंथ है वो C है, जो C हमारा यहाँ गिवन है। तो C का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 - a होल स्क्वायर
b माइनस 0 होल स्क्वायर, ये c है। तो a b c, c का वैल्यू कितना, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे देखो a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो a प्लस बी प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप देखिए वही सेम थिंग है। और यहाँ पर भी वही है ना, देखो a प्लस बी प्लस सी, सी के जगह क्या लिखा है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ठीक है। अब आपको क्या पुट करना है, x1 y1 x2 y2, ये सारे वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ओरिजिन हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, और ओरिजिन क्या हो गया x1 y1, ओरिजिन हो गया x1 y1। ओके, तो ये सारा वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा। तो क्या हम दिखा दें इसको, और आप कर सकते हो, बताओ। चलो दिखा देते हैं। तो a के जगह a, x1 के जगह 0 लिख दे 0, b के जगह b, x2 के जगह क्या लिखेंगे, x2 इज a, c के जगह c लिख रहे हैं, मतलब ये रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन x3 क्या है, x3 देखिए 0 है, तो c इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी, सी रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये इतना आ गया ना, ये 0, ये 0, ए बी बाई इतना। सिमिलरली ये पार्ट आपको करना है, यू हैव टू डू। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है जो आपको याद बहुत ही हेल्प करेगा, कि अगर आपके पास ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक पॉइंट ओरिजिन है, तो डायरेक्ट इन सेंटर का इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करके आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हो। अगर ये भूल गए तो यहाँ से डिराइव कर लेना, मैंने सब कुछ सिखा दिया आपको। और कभी कभी ऐसा केसेस भी होता है जहां पर ये a कॉमा 0 है और ये भी 0 कॉमा a है, मतलब ये दो सेम है, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यानी c का वैल्यू रूट 2a हो जाएगा। और ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब b के जगह a लिखना है और इसके जगह रूट 2a लिखना है, b के जगह a लिखना है, a प्लस रूट 2a एटसेट्रा। तो एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ऐसा करते करते मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग होते जाता है, एक से दूसरा डिराइव हो रहा है, दूसरा से तीसरा, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट शॉर्टकट में जाते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ए बी हमारा क्या है, पोर्शन या लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, राइट, जो इस ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, m इज टू एन में। जब भी m इज टू एन लिखता है तो मुझे x टू y एक्सिस मूव करना पड़ेगा, x टू y m इज टू एन, जब भी ऐसा लैंग्वेज हो। 2:3, x टू y 2:3, तो ऊपर से 3:2 दिखाई देगा वो। एनीवे तो ये हो गया, सपोज P एक पॉइंट है, P कौन सा पॉइंट है, x1 y1, और यहाँ पर m इज टू एन में रेशियो है, तो ये है। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो सेक्शन फॉर्मूला फिर से वही स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, अगर नहीं आता हो तो सेक्शन फॉर्मूला से मुझे x1 का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, यानी p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ये है वो ये ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब बातें मैं बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो p m इज टू n रेशियो में हमेशा x टूवर्ड्स y हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, p का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो वी नो ऑल दिस थिंग्स, फॉर्मूला पुट करेंगे, p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको तो p का फॉर्मूला मालूम ही है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये सब फॉर्मूला हमने सेक्शन फॉर्मूला में किया था, स्ट्रेट लाइन 1 के प्लेलिस्ट में है। ओके, ये है p का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। और p का कोऑर्डिनेट x1 y1 भी होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया, ये x1 हो गया,
और y1 का वैल्यू ये हो गया, ये y1। तो x1 y1 क्लियरली लिख लेते हैं यहां से। x1 कितना, सो एंड सो, यहां से a का वैल्यू मिल गया, y1 कितना, सो एंड सो, यहां से b का वैल्यू मिल गया। तो आप देख सकते हो ये वाला जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर पुट किया, इसको y1 हम मानते हैं ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। a और b का वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या करना है, इसका ये करना है कि भाई क्लियरली यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, तो ये तो एक इक्वेशन मिल गया। तो सपोज a और b आपको नहीं पता है, a और b क्या है नहीं पता, आपको सिर्फ x1 y1 पता है ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से, और रेशियो मालूम है m:n। आपको a और b नहीं पता है, तो a और b नहीं पता है तो आपको a का और b का जगह इसको पुट करना होगा। a के जगह आपको ये वाला वैल्यू पुट करना होगा, ये देखो मैंने पुट कर दिया, और b के जगह ये वाला वैल्यू पुट करना होगा, ये देखो मैंने पुट कर दिया, और ये आपका न्यू आंसर मिल गया या शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया। तो ये मैंने तरीका भी बता दिया। अगर मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट अगर होता तो हम जानते हैं डबल कर दो, लेकिन मिड पॉइंट अगर नहीं है, कोई और रेशियो है 2:5, 2:1:2, कुछ भी रेशियो हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या है प्रोसेस, p का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, p का कोऑर्डिनेट आप ये वाला सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। उसके बाद यू कैन से x1 इज दिस, y1 इज दिस, स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट लेट a बी a,0, b भी 0,b, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू अस अज्यूम किया, और a और b का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, पुट कर देना जो भी जैसा भी क्वेश्चन हो। तो ये बेसिक से भी हो सकता है या डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला से भी। तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है, मैं आपको शो करूंगा थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट शॉर्टकट, मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू a, ये एक्चुअली 4 लाइंस होते हैं, इसको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। ये देखो ये है वो 4 लाइंस। मॉड x को अगर कोई ओपन करे तो वो प्लस माइनस x हो जाता है, और मॉड y को कोई ओपन करे तो वो प्लस माइनस y हो जाता है। तो ये एक्चुअली 4 लाइंस है। कैसे 4 लाइंस है वो सब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। पहला लाइन प्लस x प्लस वाई इक्वल टू a, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, दोनों प्लस लिया मैंने, फिर एक प्लस एक माइनस लेंगे यहाँ पर, फिर ये एक माइनस लेंगे, ये वाला प्लस ले लेंगे, और फिर दोनों माइनस ले लेंगे, ऐसे करके 4 लाइन मुझे मिलेगा। वो चारों लाइन को हम इस फॉर्म में लिख के दिखाएंगे और ड्रॉ करके दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आए ये डिटेल में। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए x बाई ए वाई बाई ए इक्वल टू 1, यानी x इंटरसेप्ट है a,0, a,0 पॉजिटिव x एक्सिस में लाई करता है, तो ये है वो a,0। y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ से 0, b, 0, b पॉजिटिव y एक्सिस में लाई करता है, 0, a होना चाहिए क्योंकि इट्स a। ये देखिए ये है वो कोऑर्डिनेट, और ये है हमारा सेम लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है, सेम है ना, देखो सेम लाइन। तो मुझे ए बी मिल गया, ये है ए बी। तो दोनों तरफ प्लस लेने पर ये मिला। अब एक प्लस और एक माइनस लेंगे, और एक माइनस एक प्लस, ऐसे करके मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। सेकेंड केस, ठीक है, तो ये देखो a,0, 0, माइनस है, ये देखो ये मैच कर रहा है, ये और ये एडी का मिल गया इक्वेशन। नेक्स्ट, माइनस a,0, ये देखो 0, a, ये देखो क्या ये और ये मैच कर रहा है, यस। तो मुझे बीसी का इक्वेशन मिल गया, और इससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जा रहा है हाउ टू कन्वर्ट इनटू रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट, बोथ माइनस, तो ये हो गया -a,0, वेर इज -a,0, दिस, और ये भी नेगेटिव है 0, माइनस है, ये देखो ये और ये मैच कर रहा है। सो मुझे सी डी का भी इक्वेशन मिल गया। तो दीज आर एक्चुअली 4 लाइंस, दीज आर द 4 लाइंस। ये किसका इक्वेशन है, ये मॉड x प्लस मॉड y, जो देखने में इतना छोटा सा है, उसका एक्चुअली 4 इक्वेशन है, विच मेक्स अ स्क्वायर, एज यू कैन सी,
इट मेक्स अ स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस स्क्वायर, स्क्वायर रोम्बस का ही स्पेशल केस है। ईच ऑफ दिस विल बी 90 एंड ऑल। ये क्लियर है। और ये हम जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन है तो स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। चलो ठीक है, तो यहां पर स्लोप हम क्या बोलेंगे इसका, इन सब का स्लोप्स क्या होगा। चलो लिखते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी माइनस वन। ये है माइनस ए, मतलब ए वन है और बी वन है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या माइनस ए बाई बी फॉर्मूला है, ए है प्लस वन, बी है माइनस वन, तो फाइनल स्लोप क्या आ गया प्लस वन। इस तरह से मैं बाकी सब आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। फर्स्ट का इतना है, देख लीजिए। सेकेंड ये, थर्ड माइनस ए बाई बी, फोर्थ। सो अल्टीमेटली इफ यू विल सी दैट स्लोप या तो माइनस वन आ रहा है या प्लस वन आ रहा है, या तो प्लस वन आ रहा है या तो माइनस वन। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, इसका स्लोप्स क्या होगा, प्लस माइनस वन, दो सारे स्लोप प्लस माइनस। इतने सारे कंक्लूजन्स है, इसको आप और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का तो हम बात जानते हैं कि ईच साइड क्या होगा, कोई भी ईच साइड आप ले लो, हॉर्स एवरी साइड इज इक्वल। तो ए बी सपोज आप लेते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी निकाल सकते हो ईच साइड। सो स्क्वायर है ये, और ईच साइड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा होल स्क्वायर, सो एंड सो होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। सो रूट टू ए, रूट टू ए ईच साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड का होल स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ समरी में पूरा दिखा दिया है आपके लिए कि अगर ऐसा लाइन गिवन है तो वो 4 लाइंस है। ये इसका डायग्राम्स है चारों लाइन का, और उसके स्लोप्स या तो प्लस वन होंगे या माइनस वन। ईच साइड इतना, ये क्योंकि ये स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर इतना। सो एग्जाम्पल 3, so let's read this. PAB is midpoint of a line segment. एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है PAB. Show that equation of the line is this and this. Line segment is between the axis. मेन बात ये है, line segment is between the axis. So situation is like this. ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया था कि if AB is a line segment between the axis और M is the midpoint of AB, अगर AB लाइन सेगमेंट है between the axis और M उसका मिड पॉइंट है P, Q, तो A होता है P का डबल, राइट, 2P, और B होता है Q का डबल, 2Q। और हमारा इक्वेशन ऑफ A और B का अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, 2 बाई x इंटरसेप्ट, I mean x by x intercept, y by y intercept 2q इक्वल टू 1। तो जो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। तो अगर मिड पॉइंट गिवन हो, इफ द मिड पॉइंट इज गिवन, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एज योर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जस्ट डबल ऑफ p 2p और डबल ऑफ q 2q लिखना है। तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी हम कहेंगे कि मिड पॉइंट गिवन है कितना, a, b। सो मिड पॉइंट यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिड पॉइंट इज a, b। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मैंने प्रूफ भी किया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट हमारा आंसर क्या होगा, x बाय 2a y बाय 2b इक्वल्स टू 1। सो x बाई a प्लस y बाई b क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2,
प्रूव्ड हो गया। तो यहां से x बाई ए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, y बाई बी इक्वल्स टू 2, प्रूव्ड। इतना फास्ट ये प्रूव हो गया है just by using shortcut. Okay, so a comma b मिड पॉइंट है, ये 2a comma 0 हो जाएगा, ये 0 comma 2b. So according to shortcut this is my answer, proved. और इसी को अगर एकदम बेसिक मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, बेसिक मेथड बिल्कुल। सो बेसिक मेथड इज, हमारा लाइन ये है, लेट दिस बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, और मिड पॉइंट जो है पी ए बी, और फिर इसको हम कुछ लेंगे अल्फा कॉमा 0, ये 0 कॉमा बीटा, ऐसे करके अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे। अगर अल्फा हमारा ए अल्फा कॉमा 0 है, इफ ए इज अल्फा कॉमा 0, तो वी विल राइट x by alpha, and b is 0 comma beta, so I will write y by beta equal to 1 as my equation, and then I will find the value of, and then find alpha, find beta and put here. ये हमारा प्लानिंग हुआ, ये हमारा प्लानिंग हुआ। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन बाय बेसिक बिल्कुल। मिड पॉइंट इज a comma b, a is alpha comma 0, 0 comma beta, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x by x इंटरसेप्ट अल्फा, y by y इंटरसेप्ट बीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा एंड पुट इन दिस इक्वेशन, अल्फा इधर बीटा इधर। सो बहुत ही इजी है। तो फाइंड करते हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे अल्फा बीटा, p इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a इज इक्वल टू सो एंड सो बाय 2, अल्फा मिल गया। सिमिलरली b मिड पॉइंट है, तो सो एंड सो बाय 2 बीटा मिल गया। बस इसके बाद यहाँ अल्फा यहाँ पुट करेंगे, बीटा को यहाँ पर पुट करेंगे, और आंसर रेडी, x by 2a y by 2b equals to 1, therefore so and so equals to 2, proved। ये है पूरा बेसिक से सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 4, so read, it's a similar type of question. A point HK divides a line segment between the axes. Again the same situation, AB is a line segment between the axes, and a point R H comma K divides in the ratio 1:2. So we know that 1:2 we have to start from x axis and move towards y axis. So this is 1:2. So that's the situation. I have given you a shortcut formula based on this. Let me show that. This is the shortcut formula I have already given. In this case, AB is a line segment between the coordinate axes, and P is a point x1, y1, and P divides this AB in the ratio m:n. So this is the direct formula, direct shortcut formula. So to do this question, to use this formula, इस formula को use करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, m चाहिए, n, x1 and y1. We need these four quantities. So let's see, we have these four quantity or not. Yes, we have m, we have n, that is 2, we have x1, that is h, and we have y1, that is k. So these are your x1, y1. So we have all the quantities here. We can directly put in this formula and answer will be ready. So let's do it. So according to the shortcut, the situation is R is h comma k, and the ratio is 1:2. So we can easily say that this is m, this is n, this is x1, this is y1. And then we can put it here. Let's put it, x by so and so,
On simplification, we get this result, and that's your answer. So this is method 1. This is method 1 by direct shortcut. In case you don't remember this shortcut and you want to solve this question from the very basic, that is also possible, and that's also easy. So method 2 will be by direct basic concepts. So let's make some planning. Situation is let a comma 0 and capital B be 0 comma B, R is H comma K, and the ratio is 1:2. Okay. So our planning will be, somehow we have to find A and B. Somehow we have to find A and B using our section formula, internal division section formula, which I have done in straight line 1. You can see that playlist. So I will get value of A, I will get value of B. Once I know the value of A and B, एक बार A और B पता चल गया, then I can say equation of the straight lines. Question में तो पूछा गया equation of straight line AB, तो equation of straight line AB हम कह सकते हैं, we can say that this is the equation of straight line. So that is our planning, कि find AB and use this equation. So planning, find A, B from internal division section formula and use intercept form this equation. That's it. तो यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको याद दिला दे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या था? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. याद आ गया? सिमिलरली y के लिए सो हम यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. 2 विल बी दिस, 1 गोल विल गो देयर, ये सब बता चुके हैं. यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला, तो ये h का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू a 1 इंटू 0 बाई 2 प्लस 1. ये हमारा फॉर्मूला था. तो h मिल गया, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली हम k के लिए यूज कर सकते हैं, k 2 इंटू 0 1 इंटू b बाई 2 प्लस 1. हो गया. सो यहां से मिल जाएगा हमें a मिल गया. यहां से मिल जाएगा हमें b. So b is ready. Put value of a over here and put value of b over here. And our answer is ready. So this is by basic method, method 2. Method 2. On simplification, you will get this answer. Both are correct. So I hope you have understood all the concepts. So you can write down in the comment section that concepts is understood. Classwork questions to do right now and give your answer in the comment section. Each classwork has a number. For classwork 1, you write down classwork 1 and type the answer. And similarly for classwork 2, 3, etc. Classwork 1, equal length on axis, easy है. Coordinate of the middle point, I have given you shortcut also. Ratio 1:2, we have done just now.
equal intercepts. So known question. Divided in the ratio m is to n. I have given you shortcut also. शॉर्टकट भी दे दिया और बेसिक से भी मैंने बता दिया इस टाइप का. इंटरसेप्ट्स का सम 9 है यानी a प्लस b 9 है. दिस इज आवर इक्वेशन. a is x intercept, b is y intercept, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज इतना. a प्लस b 9 है. आपको सॉल्व करना है इसे. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.